میں 30 پر 5,000 روپے خرچ کرتے ہو اور زندگی بھر جب ماں باپ زندہ رہتے ہیں تو توجہ جھانک کے بھی نہیں دیکھتے ہو. اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم 30-40 ہزار کا ٹوٹی بنا دیں گے اور ایک بڑی تختی لگا دیں گے تو ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا. یہی تو ہماری نادانی ہے، بے وقوفی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماں بیچاری جب زندہ رہتی ہے، باپ زندہ رہتا ہے، ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے، توجہ نہیں دیتے، تڑپتی ہے، بسترے میں رہتی ہے، زندگی کے آخری دور سے گزرتی ہے، توجہ نہیں رہتا ماں باپ کی طرف. جن کے ماں باپ یہاں نہیں ہے نا، ان سے پوچھوا جب تھے تو قدر نہیں کر رہے تھے، اور آج نہیں ہے تو دل تڑپتا ہے. اور اکثر جمعہ میں کہتا ہوں، جب باپ بنو گے نا تب تم کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہے. اور اکثر جمعہ میں کہتا ہوں، آج جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہو، کل چل کے تمہاری اولاد جب تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی تب تم کو احساس ہوگا. آپ نے سنا ہے نا حضرت امام غزالی نے جو واقعہ لکھا ہے مختصر میں، جوان بیٹا بوڑھا باپ. جب باپ میں کمانے کی طاقت نہ رہی تو جوان بیٹے نے کہا، ابو اب آپ کو میں پال نہیں سکتا ہوں، میرے بال بچے زیادہ ہو گئے. افسوس کی بات ہے 5 بچوں کو پال رہا ہے اور ایک بوڑھا باپ جو جنت کا دروازہ ہے اسے پالنے کی طاقت نہیں ہے. 10 بچوں کو پال رہا ہے، گھر کا کرایہ دے رہا ہے، مہینے کے اتنے 1000 روپے خرچ آ رہا ہے، راشن کا، اسکول کا، بچوں کا، سب کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، وہ بھی کرو، مگر افسوس کی بات ہے کہ ایک بوڑھی ماں کو دیکھنے کی بھی اولاد کو توفیق نہیں ہوتی ہے. ایک بیمار ماں کو جھانک کے بھی نہیں دیکھتا. حضرات محترم، بڑے اطمینان سے سنا رہا ہوں. باپ نے کہا، بیٹے نے کہا، والد مجھ میں طاقت نہیں ہے. تو باپ کی خوشی تو بیٹے کی خوشی ہے. کہا، بیٹا جو تیری مرضی ہے، جو تو چاہے وہ کر، بس میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ بس تو اچھا رہنا. اللہ اکبر. حضرات محترم، المختصر یہ ہے کہ باپ کو لیتا ہے، ایک کمبل کو لیتا ہے، ایک جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے. اپنے باپ کو ایک کمبل کے ساتھ ایک جنگل میں چھوڑ کے جیسے ہی پلٹتا ہے، ساتھ میں پوتا بھی تھا، اور پوتا کو دادا سے بڑی محبت ہوتی ہے. پوتے کی نظر پڑی، دادا سے جا کے نپٹ گیا. کہا، دادا آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں. بولا، ہاں. بولے، جب کل آپ کی یاد آئے گی تو میں کیسے برداشت کروں گا، کچھ یادداشت تو دے دو. بولے، بیٹا میرے پاس ہے کیا کہ جو تم، میرے پاس کیا ہے جو تم کو دوں. بولے، یہ کمبل ہے نا جو میرے باپ نے دیا ہے، آپ آدھا رکھ لو، آدھا مجھے پھاڑ کے دے دو. دادا تھا، دل تڑپ گیا. بولے، ٹھیک ہے بیٹا، لیتا. حضرت محترم، آدھا کمبل لیتا ہے پوتا، باپ کی نظر پڑی. کہا، کمبخت، نالائق کمینے، میں نے میرے باپ کو کچھ نہیں دیا، ایک کمبل دیا تھا وہ بھی تو نے لوٹا لیا، لے لیا، آدھا کر دیا. بولے، ہاں ابا. بولے، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ بولے، اس لیے کیا ہو کہ جب آج آپ جوان ہو اور آپ کا باپ بوڑھا ہے، آپ نے اسے جنگل میں چھوڑا ہے، جب کل میں جوان ہو جاؤں گا، آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کو اسی آدھے کمبل کے ساتھ میرے دادا کی جگہ پہ چھوڑ کے آؤں گا. جیسی کرنی بولو ویسی بھرنی. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اپنی ماں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھو گے، آپ کے باپ کی طرف توجہ نہیں دو گے. آپ کی ماں کس حال میں ہے؟ آپ نے کبھی ماں کو دیکھا نہیں ہے. ماں جی رہی ہے یا مر رہی ہے، باپ مر رہا ہے یا جی رہا ہے، آپ کا توجہ نہیں ہے. اور اپنی اولاد سے بھلائی کی امید رکھنا یہ آپ کی بڑی بے وقوفی ہے. حضرات محترم، آج 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ فرما دیا ہے، اے میرے غلام سن لو، یاد رکھنا تم جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے، تمہاری جو آنے والی اولاد ہوگی وہ بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی. اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو یاد رکھنا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تم جس طریقے سے پیش آؤ گے تمہاری اولاد بھی تمہارے
हजरात हालात बहुत नाजुक हैं। पहले बात शबरी अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है ना आपका, है ना भाई? एक बार सुभान अल्लाह बोलिए, फिर देखेंगे तवज्जो है। और एक बार बोलिए एक बार नबी के नाम से बोलिए माशाल्लाह। एक बार बॉस के नाम से बोलिए और एक बार तलब के कहिए। हज़रत मोहतरम हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। मेरे नबी नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम, नबी का एक सज्दा एक तरफ, उम्मत के सारे सज्दे एक तरफ, सारे सज्दे मिलकर नबी के एक सज्दे की बराबरी नहीं हो सकती है। मेरे नबी का सज्दा खुदा की कसम अरे हो सकता है नबी के एक सज्दे के सदके में उम्मत की माफियत है। हमारे नबी की शान वो शान है। हज़रत मोहतरम नबी की हर चीज बेमिसाल है ना? हर चीज बेमिसाल है। मेरे नबी का चलना बेमिसाल, मेरे नबी का सोना जागना खाना पीना हर चीज बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। हज़रत अगर किसी के अखलाक की तारीफ आप और हम कर दें तो माशाअल्लाह, है ना? अगर कोई अच्छा आदमी हो और हम उसके अखलाक की तारीफ कर दें कि ये हुस्न और अखलाक का पैकर है, हुस्न और अखलाक का मुजस्समा है, आया समझ में? फजल कमाल का मुजस्समा है, बड़ा अच्छा आदमी है, तो दुनिया वाले तारीफ करें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कोई बात मेरे नबी के अखलाक पर, मेरे नबी की शान पर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के अखलाक की तारीफ कुरान में यूं कर रहा है। कुरान का 29वां पारा सूरह कलम, अल्लाह इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अगर जबान में मुंह में जबान है तो सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब, बेशक आपका अखलाक बहुत ही ऊंचा अखलाक है। बोलो सुभान अल्लाह। आपका अखलाक बड़ा ऊंचा अखलाक है। ऐ मेरे महबूब, आपका अखलाक बेमिसाल है। आपका जो हुस्न अखलाक है उसकी कोई मिसाल नहीं है। ऐ मेरे महबूब, जिस तरह से आपकी हर चीज बेमिसाल है, आपका अखलाक भी बेमिसाल है। मेरे नबी मस्जिद नबी भी बल्कि अपने घर में एक ऐसी जगह पे आराम फरमा है। नबी सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, नबी की आंखें बंद है, दिल जाग रहा है। एक शख्स जिस घर में हुजूर आराम फरमाते थे वहां एक तलवार लटक रही थी। क्या लटक रही थी? तलवार। एक आदमी चुपके से घर में दाखिल हुआ, तलवार लिया और तलवार लेके सीधा नबी के गले में रखा। आपा के गले में रखा और गले में रखने के बाद कहने लगा ऐ मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद या नबी, अब आप बताइए आपको मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? क्या कहा? बड़ा घटिया काफिर था, ईमान नहीं आया था, नबी की आंखें बंद थी, चुपके से हुजरे में दाखिल हुआ। उन्होंने दाखिल होने के बाद नंगी तलवार लटक रही थी, तलवार लिया और नबी के गले में तलवार रखा। मेरे नबी का अखलाक देखो, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, इसी को तो कहते हैं जानलेवा दुश्मन। हज़रत अगर कोई आपका जानलेवा दुश्मन है आप यकीनन उसे माफ नहीं करोगे, मगर नबी के अखलाक पे, मेरे नबी के हुस्न पे कुर्बान जाओ। नबी की गर्दन में तलवार रखा और तलवार रखने के बाद मेरे नबी से कहने लगा ऐ मोहम्मद अरबी, अब आप बताओ मेरी तलवार से आपको कौन बचा सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी तलवार से मुझे मेरा रब बचाएगा, तुम्हारी तलवार से मेरा रब मुझे बताएगा। इतना कहना था, जैसे ही मेरे नबी ने कहा मेरा रब तुम्हारी तलवार से मुझे बचाएगा, उसका हाथ कांपने लगा, थर्राने लगा और उसी आलम में उसके हाथ से तलवार नीचे छूट गई। तो मेरे आका ने उस तलवार को उठाया और उठाने के बाद उसके गर्दन में रखा और रखने के बाद अब मेरे आका मुस्कुराते हुए फरमाते हैं अब बोल मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा? है ना? अब बोल मेरी तलवार से, तेरी तलवार से बचाएगा, लेकिन मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा? हजरत मोहतरम अल्लाह को मानता नहीं था, काफिर था। अगर अल्लाह को मानता तो वो भी अल्लाह का नाम लेता। उसने फर्ज कर दिया ऐ मोहम्मद अरबी, अब्दुल्ला के बेटे, अमीना के नूरे नजर, अब तो आपकी तलवार से मुझे आप ही बचा सकते हैं। आया समझ में? तो मेरे नबी ने फरमाया फिर पढ़ कलमा। क्या कहा? पढ़ कलमा। उन्होंने कहा नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ता। अब चाहते तो नबी कुछ भी कर सकते थे ना, है ना? हज़रत
नबी का अखलाक देखो, नबी का हुस्न देखो, मेरे नबी के अखलाक पे कुर्बान जाओ। मेरे आका फरमाते हैं, अरे जब तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, जबरदस्ती मेरे नबी नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया, अरे शख्स जा मैंने तेरे खता को माफ कर दिया है, मैंने तेरी खता को माफ कर दिया है। हजरत इससे पहले भी मैंने ये वाकया सुनाया है, जिन लोगों ने सुना है सुनकर अपने ईमान को ताजा करें। थोड़ी सी दौलत हो जाए, किसी को कुछ समझते ही नहीं हो, दौलत तुम्हारी है, अपने बाप की प्रॉपर्टी है। क्या तुमने देखा नहीं कल तक तो करोड़पति था, आज भिखारी है। कल तक तो भिखारी था, आज करोड़पति है। दौलत पर तजब्बुर करने वालों, हजरत अगर अल्लाह थोड़ा बहुत नवाज दे तो इंसान और दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, दौलत सारी कायनात की दौलत तो मेरे मुस्तफा के कदमों में थी। अरे हकीकत तो ये है कि आज जो शहंशाह बना है, अमीर बना है, मालदार बना है, मेरे नबी के दर से भीख मिली है, दरे नबी से भीख मिली है, तभी तो मालदार बने हैं। आया समझ में? हजरत मोहतरम, अगर मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी बन जाए, गरीबों को देखना ही नहीं चाहता। आया समझ में? गरीबों का सुनना ही नहीं चाहता। मगर कुर्बान जा मेरे नबी के अखलाक पर। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबी में जब मेरे आका मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, कहाँ गए बोलो ना यार? मक्का छोड़ के हिजरत करके कहाँ गए? मदीना गए। तो मदीना जाने के बाद में ऐसा हुआ, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल की सोहरत शुरू हो गई। बोले मोहम्मद अरबी आए हैं, और उसमें ऐसा हुआ कि जो पक्के कट्टर लोग थे वो मदीना छोड़ छोड़ के भाग जाते थे। बोले कोई नया दीन लेके आए हैं, और ऐसा है वो अब्दुल्ला का नूरे नजर मोहम्मद नाम का आदमी, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले जो उनको देखता है उनका ही हो जाता है, जो उनसे मिलता है उन्हीं का हो जाता है। अल्लाह अकबर। इन्हीं लोगों में एक बुढ़िया, कौन? एक बुढ़िया बहुत पक्की थी, वही सूरत इसको उसको पूजने वाली। बोले मोहम्मद नाम का कोई आदमी आया है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कर रहा है। उन्होंने इरादा किया कि मक्का मदीना छोड़कर कोई और शहर जाके रहने लगूंगी। अपना बुढ़िया बिस्तर ली और लेने के बाद में रवाना होने लगी। हजरत मोहतरम उम्र ज्यादा थी, वजन भी ज्यादा था, उम्र का तकाजा था, वजन लेके नहीं जा पा रही थी। मेरे आका तिजारत से मदीना तशरीफ ला रहे थे। बुढ़िया से मुलाकात हो गई। अब बुढ़िया को पता नहीं कि यही मोहम्मद अरबी ने, बोले सुभान अल्लाह। बुढ़िया को पता नहीं कि यही मोहम्मद अरबी है। मेरे नबी की नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद में मेरे आका ने जैसे ही बुढ़िया को देखा कि उम्र बहुत ज्यादा है और वजन भी ज्यादा है, इनको तो ले जाने में तकलीफ हो रही है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ। हजरत मोहतरम, बल्कि बाज़ रिवायत में आया कि वो बूढ़ी किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई इधर से गुजरे तो मेरा सामान उठा के दे। इतने में नबी से मुलाकात हो गई। मुख्तलिफ रिवायत है हजरत मोहतरम, बाहर जो भी रिवायत हो, मेरे नबी उधर से गुजरे। बुढ़िया की नजर नबी पर पड़ती है, हमारे आका पर पड़ती है। जैसे ही नजर पड़ी, आका को बुलाई और बुलाने के बाद कहने लगी, प्यारे बड़े खूबसूरत हो, आज तक मैंने मदीने में तुम जैसा खूबसूरत अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। उस जमाल का पैकर हो, प्यारे जरा मदद करो। मेरे आका फरमाते हैं, बूढ़ी माँ बोलो तो सही, क्या मदद की जरूरत है? अरे बेटा, उम्र को देख रही हो, उम्र का तकाजा है, वजन भी ज्यादा है, ये जो कठरी है उठा के सर पे रख नहीं पा रही हो, जरा मदद ये कर दो। ये कठरी, ये बोझ उठाकर मेरे सर पे रख दो। बोले सुभान अल्लाह। है ना? बात किससे कर रही है? नबी से। बात उनसे कर रही है कि जिनसे बचने के लिए मदीना छोड़ के बाहर जा रही है, उन्हीं से बात कर रही है। मगर बुढ़िया नाइल्म है, बुढ़िया को खबर नहीं है कि यही मोहम्मद अरबी है। गुफ्तगू हुई, मेरे नबी ने फरमाया, बूढ़ी माँ ऐसा करो ना, कहाँ जा रही हो? बेटा मत पूछो, मदीने में मोहम्मद नाम का, हुजूर को बोल रही है, मदीने में मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है, हमारे खुदाओं को झुठला रहे हैं, नया दीन लेकर आया है, और ऐसा आदमी है जो उनसे मिलने उनका ही हो जाता है। बेटा उनके दीन से बचकर मदीना छोड़ के जा रही है ताकि वो असर मुझ पर ना पड़ जाए। मेरे नबी दिली दिल मुस्कुराती है, मुस्कुराते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, बुरी माँ काम करो,
ये वजन उठा के नहीं, बल्कि जहां तुम जा रही हो मैं वहां तक पहुंचा देता हूं। बोलो सुभान अल्लाह, है ना, वहां तक पहुंचा देता हूं। मेरे नबी ने गठरी को उठाया, उठाने के बाद अपने कांधे में रखा। अब बूढ़ी पीछे पीछे आ रही है, मेरे आका आगे आगे जा रहे हैं। जिस जगह को उस बुढ़िया को जाना था, मेरे नबी ने गठरी को उतारा, उतारने के बाद नीचे जमीन में रखा, और रखने के बाद में हजरत मोहतरम आका वापस तशरीफ मदीने की तरफ लाने लगे। तो बुढ़िया ने रुका, कहा प्यारे रुक जाओ रुक जाओ, मुझ पे एहसान किए हो, कुछ नसीहत तो लेके जाओ, कुछ नसीहत तो सुन के जाओ, तुमने मुझ पे एहसान किया है। अल्लाह अकबर। अब वो बुढ़िया हुजूर जी को नसीहत कर रही है। क्या कर रही है कि मोहम्मद नाम का मदीने में एक आदमी आया है, सुना है कि अब्दुल्ला का बेटा है, आमीना का नूरे नजर है, नया दीन लेके आया है, नया खुदा का दावाही कर रहा है, बेटा उनसे बचिए रहना, है ना, बड़े खूबसूरत हो, उनसे कभी मिलना नहीं, मैंने तुम्हारी तरह किसी को खूबसूरत आज तक देखा नहीं। हुजूर को नसीहत कर रही है। मेरे आका ने सारी बातें सुन लिया, और सुनने के बाद आका मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, बूढ़ी माँ, तुम जिस मोहम्मद की बुराई कर रही हो, जिनसे मुझे बचने के लिए कह रही हो, ये कोई और नहीं, मैं ही हूं। ये कोई और नहीं, वो मैं हूं। हजरत इतना सुनना था, तारीख गवाह है, तारीख की औलाद को पलटो। जैसे ही मेरे नबी ने कहा, बुढ़िया कदमों में गिरी और कहने लगी, ऐ मोहम्मद या नबी, अब लेट क्यों, ताखीर क्यों हो रही है, कलमा पढ़ा कर अपने दिल में दाखिल करो। अरे जिस मोहम्मद का अखलाक इतना अच्छा हो, उनका दिल कितना अच्छा होगा, जिनका दिल इतना अच्छा हो, उसका रब कितना अच्छा होगा। हजरत, ये है अखलाक, ये है जी। थोड़ी सी दौलत आई, इतना इतराते हो। हजरत मोहतरम, कोई आदमी अपनी जवानी पे इतरा रहा है, कोई दुबला पतला है तो उसको कुछ समझता ही नहीं, बोलता एक दूंगा तो मांग लेगा, बेवकूफ, उसे तू देगा, तुझे भी तो देने वाला कोई है ना। हाँ भाई, वो गरीब मेरे सामने उसकी क्या रखा। अरे तू ये भी तो सोच कि रब के सामने तेरी क्या औकात है। रब के सामने कहा गए बड़े बड़े पहलवान, खाली कर दिया मोहल्ला। कहा गए रईस, एक बीमारी है ना, मैं ये बताना चाह रहा था, एक बीमारी। हजरत, बमन हली से एक फोन आया तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। मेरे दोस्त तो तड़प तड़प के लड़का फोन में रो रहा है। मैंने कहा प्यारे क्या हुआ, उस वक्त मैं भी हॉस्पिटल में था। मैंने कहा क्या हुआ, बोले हजरत मेरे बाप के पास इतनी दौलत है, मेरे बाप ने 5-6 बिल्डिंग है, लाखों रुपए महीने के किराए आते हैं, मेरे बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझा। हम जानते हैं कि हमारे बाप ने हमारी परवरिश के लिए कितनी मेहनत की है। हजरत खुदा की कसम, मेरे बाप ने जो दौलत कमाया हो मेहनत से कमाया है, लेकिन हजरत अफसोस इस बात का है, लाखों रुपए किराए हैं, घर में गाड़ियों की लाइन है, नौकरों की लाइन है, लेकिन मेरे बाप मर गए तो हम उनका दीदार भी ना कर सके, उनका दीदार भी ना कर सके। हजरत कहाँ गई उनकी दौलत, कहाँ गई गाड़ी, ना दीदार हुआ, ना सुन्नत तरीके से गुस्ल हुआ, ना कफन मिला, और ना ही शरीयत के हिसाब से उनको कब्र मुयस्सर आया। कब्र देखो तो गारा की तरह, कफन देखो तो कपड़ा लपेट दिया, गुस्ल देखो तो जिस्म में पानी डाल दिया, है ना। घर का एक आदमी पहुंचा, बोले हजरत 10 फीट के फासले पर खड़े थे, पता नहीं मेरा ही बाप था कि किसी और का बाप था। कहा यही बिले तुम्हारा बाप है। मुसलमानों, मोहल्ले की अमीरों, अपने आप में तकब्बुर, गुरूर, घमंड करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं कहां गई उसकी दौलत। अपनी जवानी पर इतराने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जवान आदमी जिसके बाप की लाश
उसके कांधे पे जाना था, बूढ़े बाप के कांधे पे जवान बच्चे की लाश जा रही है। मैं ऐसे जवानों से पूछना चाहता हूँ, कहा गई तुम्हारी जवानी? अल्लाह अकबर, बाप का अकेला बेटा था। क्या आपने देखा नहीं है? हमारे मोहल्ले ही की बात है, एक घर से 7-7 मैयतें निकल रही है, एक खानदान से 10-10 मैयतें निकल रही है। आप लाइव में हो सकते हो, मगर मुझे उसकी खबर है, मैं जानता हूं। मुसलमानों, कहाँ गई जवानी, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गई माँ? क्या आपने देखा नहीं है? एक बीमारी जब इंसान को, जिसको आप कोरोना कहते हो, अगर किसी को हो जाए, बीवी भी अलग बिस्तरा कर लेती है, माँ भी जरा एहतियात करती है, बाप भी एहतियात करता है, बच्चे भी एहतियात करते हैं, सब दूर हो जाते हैं। ऐसे वक्त में रब तबारक व तआला ने हमें ये बता दिया है कि दुनिया वालों, अगर सब तुम्हारा साथ छोड़ दे, और एक वक्त आता है कि सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन रब यकीनन हमारा साथ देता है ना? हजरात, ये इंसान की जिंदगी है, ये इंसान की, ये सब इबरत है, इबरत। कल ही एक आदमी मुझे कह रहा था, बोले हजरत ये बीमारी कब तक जाएगी, ये बीमारी है क्या? मैंने कहा बेटा ये बीमारी तो अपनी जगह है, मगर यकीनन ये बीमारी लोगों के लिए एक इबरत है, अल्लाह की तरफ से कहर है, लोगों के अमाल की सजा है। पूरी दुनिया अपने आप को बहुत बड़ी समझती थी, मगर रब ने बता दिया सारी दुनिया को, अरे दुनिया वालों, मेरी ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं है। मेरी ताकत के सामने, अगर मैं दूसरी जबान में कह दूं, एक दिन मैं बैठा हुआ था गेट में, कहाँ बैठा हूं, एक लड़का सिराज नाम का, शायद अभी जुमा में बैठा भी होगा, वो मुझे बादाम ला के दिया। क्या दिया? कम से कम आधा किलो। मैंने कहा यार 10 रुपए का 8 बादाम, और तुम आधा किलो बादाम ला के दीजिए। बोलता, मुस्कुरा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। बोला सर खाइए खाइए। मैंने 2-3 बादाम खाया, बराबर है। खाने के बाद मैंने कहा बाद में खाऊंगा। बोले हजरत, कह रहा है कैसा लगा? मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा। कुछ फर्क महसूस हुआ? मैंने कहा कुछ भी फर्क नहीं है, एकदम बादाम की तरह, जायका बादाम की तरह, कुछ भी रद्द बदल नहीं है। बाद में मुस्कुराते हुए कहता है हजरत ये चाइना का डुप्लीकेट बादाम है। मैंने कहा हाँ बेटा, इसलिए आधा किलो ला के दियो, अगर ओरिजिनल होता तो 100 ग्राम ला के देते। हजरत, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वो चाइना जिसने आज पूरी दुनिया की हर चीज को डुप्लीकेट बना दिया, आटा को डुप्लीकेट बनाया, चावल को डुप्लीकेट बनाया, इंसान को डुप्लीकेट बनाया, हर चीज को डुप्लीकेट बनाया। हज़रात मोहतरम, मगर कहाँ गई उसकी ताकत, कहाँ गया उसका तकब्बुर, कहाँ गई उसकी घमंड? कि एक बीमारी जो रब की तरफ से कार्य खुदाबंदी होकर पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है। मेरे दोस्तों, वो चाइना हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री हो जाए, इस बीमारी का इलाज निकालने में आज भी कासिर है ना? आज भी नहीं निकाल पाई है। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे रब ने दिखा दिया, रब ने बता दिया कि हकीकत में सब मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये दौलत, ये शोहरत, ये जवानी, ये इज्जत, सब कुछ यही रह जाएगी। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल हर वक्त सजदे में रहते थे, हर वक्त इबादत में। कुरान की आयत है, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब इतनी नमाजें ना पढ़ो कि थक जाओ, प्यारे जरा आराम भी कर लो। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब जरा आराम भी कर लो। मेरे नबी हर वक्त तबलीग में रहते थे, समझ गए ना? उम्मत के गम में बेकरार रहते थे, हर वक्त उम्मत के गम में रहते थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब इतना ना रो कि रो रो के तुम ही दुनिया से पर्दा कर जाओ। अल्लाह ने मना फरमाया। हज़रत नबी होके रहते थे, घर में जो होता सब अल्लाह की रहमत देते थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब इतना भी ना दो कि तुमको भूखा रहना पड़े। अल्लाह अकबर। हर चीज की अल्लाह ने घर मुकर्रर की है,
کیا مقرر کی ہے؟ شریعت میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، مگر جب بات آتی ہے اخلاق کی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب ہر چیز کی ایک حد ہے، مگر اخلاق کو جتنا چاہو اتنا بڑھاؤ، جتنا چاہو اپنے اخلاق کو اتنا بڑھاتے رہو۔ حضرات حقیقت یہی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے، ہمارے نبی کے اخلاق سے۔ حضرات محترم، اسی مسجد بلال میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر ہم نے آپ کو تقریباً 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ پہلے یہ وارننگ دیا تھا، آگاہ کیا تھا، آپ کو متنبہ ہم کیے تھے کہ لوگوں اپنی دولت کی حفاظت کرو، اپنی دولت کی حفاظت کرو۔ یاد رکھنا مسلمانوں کے تعلق سے جو وقت چل رہا ہے، جو حالات مستقبل قریب میں آ رہے ہیں، یقیناً مسلمانوں کے لیے تاریکی ہے۔ حضرات بہت افسوسناک حالات ہیں۔ حضرات اپنی حفاظت کیجیے، اپنی سیفٹی میں رہیے۔ جمعہ کے بعد کچھ لوگوں سے ہم مصافحہ نہیں کرتے، پچھلے کئی جمعہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دی، بولے حضرت ملتے ہی نہیں۔ میرے دوستو، نماز پڑھنا فرض ہے، بولو نا، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، جن پر جو چیز فرض ہے ان پر فرض ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام فرضوں میں سب سے پہلا فرض جان بچانا بھی ہے۔ جب آپ کی جان نہیں رہے گی تو نماز کیا آپ کھا پڑو گے؟ پیشانی نہیں رہے گی تو سجدہ کیا کرو گے؟ ہاتھ نہیں رہیں گے رکوع کیا کرو گے؟ زبان نہیں رہے گی تلاوت کس کی کرو گے؟ ہے نا؟ حضرات کو جان بچانا بھی یقیناً فرض ہے۔ حالات آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر چیز کھل چکی ہے تو سب صحیح ہو چکا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، لاپرواہی ہے۔ خدا کے واسطے جن کے ماں باپ ہیں، خدا کی قسم آپ بڑے خوش نصیب ہو، ہے نا؟ جب ماں نہیں رہے گی، آج ماں کی قدر نہیں کر رہے ہو، جب کل ماں چلی جائے گی نا، خون کا آنسو لو گے۔ آج باپ ہے، قدر نہیں کر رہے ہو، جب کل باپ بچھڑ جائے گا نا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، خون کا آنسو لو گے۔ یہ غلام مصطفیٰ قادری کے جملے کو یاد رکھنا۔ حضرات ہماری ماں نہیں ہے، ہمارے باپ نہیں ہے، ایسے بہت سارے یہاں میرے بھائی دوست احباب بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ ان کے سینے میں ہاتھ رکھ کے ان کو بولو کہ اللہ کی قسم کھا کر بولو، آج جو تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ حضرات یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ جب تک ماں باپ رہتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے، اور ماں باپ کے جانے کے بعد ایسا جہنم کرتے ہیں اللہ کی پناہ۔ اعلیٰ حضرت کا وصال کا وقت جب قریب آیا، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے مریدوں کو بلایا، کہا مریدوں سنو۔ کہا حضور کیا ہوا؟ بولے جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے 40 روپے کا کھانا پیسے والے کو نہ کھلانا، خالی غریبوں کو کھلانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چالیاں کرنے والوں سے کتنے غریبوں کو کھلاتے ہو؟ دعوت میں بڑی بڑی کار لے کے سب بت پہن کے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ پہن جاتے ہیں، ان کی دعوت پہلے، غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا جہنم بیکار ہے۔ جب تک ماں زندہ رہی، جب تک باپ زندہ رہا، تم نے ماں باپ کی دعائیں نہیں دی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کبھی ماں کا پیر دبا کر ماں سے کہہ دیے ہوتے ماں ذرا دعا کر دے؟ اللہ اکبر۔ دوست میرے پیارے، خدا کی قسم، کبھی تم نے اپنے ماں کے سر پہ تیل لگا کر ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ذرا ماں کے ہاتھ پیر دبا کر خدمت کر دیا ہوتا؟ اور اگر اسی عالم میں تمہاری ماں خوش ہو کے کہہ دے اللہ میں میرے بیٹے سے خوش ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت بایزید بستامی مریدوں سے کہا کرتے تھے اے لوگوں، مجھے جو ولایت ملی ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ کس کی؟